अंकों पे खड़ा है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज T, second formulae of limits, derivatives and integration formulae F. बच्चों F for formulae, I for identities and T for treatment. बराबर है? लिमिट्स में 4, डेरिवेटिव्स में 8, एक डजन ट्रीटमेंट और इंटीग्रेशन की 12. ऐसे 2 डजन ट्रीटमेंट हो गए तो आपका कैलकुलस खत्म हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो उसमें से जो पहला पिलर है आइडेंटिटीज, वो ही हम लोगों को बराबर से आते नहीं रहते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो एक 3 मिनट का मंत्र मैं आपको दे देता हूँ. राइट? द फुल आइडेंटिटीज वी स्पीक विद इन मैक्सिमम 3 मिनट्स. बच्चों एक रिदम में आइडेंटिटीज बोलनी होती है. बराबर है? तो स्टार्ट करते हैं. आइडेंटिटीज देख लो. फर्स्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. बच्चों बेसिक स्कूल लेवल से चालू हो रही है. साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. टाइम लगा दिया तुम लोगों ने. tan sin upon cos, 1 upon sin cosec, 1 upon cos sec, 1 upon tan cot. Sin 0 is equal to 0 for 30, 45, 60. 1 upon 2, 1 upon root 2, root 3 upon 2. Tan 90, sin 90 is 1. For tan 0 is 0 for 30, 45, 60. 1 upon root 3, 1 root 3. स्कूल लेवल की sin square theta plus cos square theta is equal to 1. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. बच्चों अगर आपको आती रहेगी तो बोलते जाओ. समझ में आ रहा है? Then next is unit circle. बच्चों unit circle is a circle with center at the origin and radius is equal to 1. तो जैसे पॉइंट घूमते रहता है उसके ऊपर x gives you cos, y gives you sin. तो x is cos and y is sin. फिर हमारी a plus b की आइडेंटिटी चालू हो जाती है. sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. उसके सामने उसकी मॉडिफाइड आइडेंटिटी लिखी है. tan pi by 4 plus theta is equal to 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta. cos 2 theta की 4, cos square theta minus sin square theta, 1 minus 2 sin square theta, 2 cos square theta minus 1, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. Modified. 1 minus cos x, 2 sin square x by 2. 1 plus cos x, 2 cos square x by 2. Sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Modified. 1 plus sin 2 is cos a plus sin a the whole square. Tan 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. 3 theta. Sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Tan 3 theta is equal to 3 tan theta minus tan square theta upon 1 minus 3 tan square theta. बच्चों pi by 2 and pi में pi by 2 में एक ही आइडेंटिटी ध्यान में रखना. Cos pi by 2 plus theta is minus sin theta, rest all positive. बच्चों pi by 2 मतलब पलटू. cos को sin में कन्वर्ट करता है, sin को cos में कन्वर्ट करता है. एंड पाई बेचारा गाय जैसा होता है, sin को sin ही रखता है. तो sin pi minus theta is sin theta, rest all negative. बराबर है? cos pi by 2 plus theta is minus sin theta, rest all positive. sin pi minus theta is sin theta, rest all negative. बाद में फैक्टराइजेशन. sin plus sin 2 sin cos, sin minus sin 2 cos sin, cos plus cos 2 cos cos, cos minus cos minus 2 sin sin. बच्चों फैक्टराइजेशन फार्मूला क्या करता है? प्लस वाले को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता है. डिफैक्टराइजेशन ऑपोजिट प्रोसेस, मल्टीप्लिकेशन को प्लस या माइनस में कन्वर्ट कर देता है. 2 sin cos, sin plus sin, 2 cos sin, sin minus sin, 2 cos cos, cos plus cos. लास्ट वाली पूरी बोलने की. 2 sin a sin b is equal to cos a minus b minus cos a plus b. बच्चों इन आइडेंटिटीज से 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मैच किया था. और 12th स्टैंडर्ड में आइडेंटिटी से प्रॉब्लम को सिंपलीफाई किया. हाँ? बच्चों अगर एक स्टेटमेंट में मैं बोलूं कि कैलकुलस क्या है, तो ट्रीटमेंट देके प्रॉब्लम को फॉर्मूला में लेके आओ या मेथड्स में लेके आओ. तुम लोगों को समझ में आ रहा है? इट इज दैट इजी.
बट देन व्हाट डज हैपन, ये आइडेंटिटीज हम लोगों को बिगिनिंग में मालूम नहीं रहती बच्चों। इस क्रैश कोर्स में थोड़ा सा ट्यूनिंग खराब हुआ है, दिमाग खराब नहीं है। तो जैसे कि गाड़ी कैसे रहती है, इंजन में थोड़ा सा ट्यूनिंग का प्रॉब्लम हुआ तो गाड़ी खड़खड़ खड़खड़ चालू हो जाता है ना उसका, वैसा हुआ है। तो वो ट्यूनिंग बराबर हो गया ना बच्चों, आप आराम से चले जाओ। Are you understanding? You have got enough time. You are going to appear for your examinations. Everything will be comfortable. बराबर है? तो ये आइडेंटिटीज आज के बाद स्नान करते समय हमेशा बोलते रहना। अभी आज जैसे हम लोग गणपति का स्तोत्र बोलते रहते हैं, वैसे ये बोलना। बराबर है? एक बार देख लो बराबर। कैलकुलस में 3 बम्बों की बात चालू थी, उसमें से आइडेंटिटीज, ये जो कंसेप्ट है वो हमारा क्लियर हो गया। इस आइडेंटिटीज का मकसद क्या होगा, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला में डाल देना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ना फॉर्मूले जो है वो मैं जब टॉपिक चालू रहेगा वो टॉपिक के हिसाब से मैं आपको बताते जाऊंगा, राइट? सो फॉर्मूले ऑफ लिमिट्स, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन, एंड टी इज द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द फंक्शन, राइट? तो भाई फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन इज द इक्वेशन बिटवीन, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, बच्चों मैं मैथ्स एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, साइंटिस्ट जैसा नहीं बोलता, जो बच्चों को समझता है उस लैंग्वेज में। फंक्शन इज द इक्वेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अ ड्राइवर इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। So there are 2 variables which we will consider. X is time and y is distance. बच्चों he is going with 60 km per hour. So within 1 hour he will travel 60 km. In 2 hours, in 3 hours. बच्चों I went on telling you the time and you told me the distances. So distance is the dependent variable. Time is the independent variable. So I can write down this as y is equal to 60x. So function, एकदम simple language, means the equation between independent variable x and dependent variable y. Are you understanding? तो ये हो गया हमारा displacement function. वैसे cost function is the equation between cost and output. Demand function is the equation between demand and price. Revenue function is the equation between revenue and, अरे रेवेन्यू पैसा किसके ऊपर डिपेंड रहता है, कैसे कमाओगे? प्रोडक्शन किया तो मेरा बच गया पैसा। इनकम किसके ऊपर डिपेंड रहता है? इनकम का दूसरा नाम रेवेन्यू। बोल, अरे रेवेन्यू बोल यार, तू तो करोड़ों का धंधा करने वाला है। Revenue depends on sales, yes, and sales depends on what? At demand. अरे भाई जिसका डिमांड ज्यादा, जिस प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा उसका सेल्स ज्यादा, जिसका सेल्स ज्यादा उसका प्रॉफिट ज्यादा। तो फंक्शन इज व्हाट? इट इज द इक्वेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y। तो पूरे के पूरे कैलकुलस में ना इन लिमिट्स वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। In derivatives, we carry out the operation on the function, and then there is anti-operation which is called as integration. बच्चों छोटा सा एग्जांपल देखो, अभी छोटा सा तो डेरिवेटिव दोनों का आता रहेगा, तो मैं डेरिवेटिव लेता हूँ dy by dx, 60 कांस्टेंट बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो मिल गई ना मुझे वेलोसिटी। मतलब व्हाट इज डेरिवेटिव? It is the operation which is carried out on the function, so that you get the rate of change. Derivative gives you rate of change of dependent variable with respect to independent variable. बच्चों 60x का डेरिवेटिव लिया तो आ गया 60। अब मजा देख लो, 60 का मैं इंटीग्रेशन लेता हूं तो मुझे 60x आना चाहिए। बच्चों ऑपरेशन एंड एंटी ऑपरेशन ना, अगर जब तक एंटी ऑपरेशन नहीं करोगे ऑपरेशन इज नेवर सक्सेसफुल। जैसे कि डॉक्टर ने स्टमक कट कर लिया तो वो एंटी ऑपरेशन नहीं करना चाहिए क्या? उसने तो पेशेंट की क्या हालत होगी? अरे समझ में आ रहा है कि बच्चों एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट, इवन इफ यू सी एटम,
तो इट हैज टू बी विद पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स, तो नेगेटिवली चार्ज। तो जिंदगी में बच्चों प्लस एंड माइनस एक साथ है, इसके जिंदगी स्टेबल है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? तो ऑपरेशन एंड एंटी ऑपरेशन, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। तो ये जो टोटल हमारा टॉपिक है, लिमिट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव is the operation which is carried out on the function, and integration is anti-derivative. तुम लोगों को समझ में आ रहा है कनेक्शन पूरा कैलकुलस का, राइट? ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि फंक्शन is the equation between independent variable x and dependent variable y. यहाँ मैं आपको ये प्रूव करके दिखाया कि भाई डेरिवेटिव is the operation carried out on the function. अब मैं इसका इंटीग्रेशन लेता हूँ 60 with respect to x. But your derivative and antiderivative are exactly same. 60 will come out. बच्चों x का डेरिवेटिव क्या बोला था आपने? तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x. तो इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आया, इसका इंटीग्रेशन लिया तो पूरी हमारी कैलकुलस की जर्नी ऐसे होगी। वैल्यू ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव निकाल के हम लोग f डैश x के पास जाएंगे, f डैश x का इंटीग्रल लेकर हम लोग फिर से fx के पास पहुंचेंगे और हमारी जर्नी कंप्लीट होगी। ड्यूरिंग दिस यहाँ आपका लिमिट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, या इंटीग्रेशन के बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पूरा सर्कल समझ में आ रहा है? समझे? ओके बच्चों, अब मैं जनरल आइडिया देने के बाद लेट मी कम टू द कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, देखो एकदम सिंपल। सपोज इफ आई टेक द फंक्शन y is equal to 2x plus 1, all of you agree that this is the function, right? बच्चों पूरा का पूरा कैलकुलस ये 5 पांडवों का गेम है, 5 फंक्शंस है जिनका नाम है LIATE। E मतलब एक्सपोनेंशियल, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, A मतलब अलजेब्रिक, I मतलब इनवर्स एंड L मतलब लॉगरिथम। So the full game is of 5 functions, right? Out of which this is the algebraic function. Now इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है y। तो लेट्स टेक x टेंड्स टू 2। बच्चों ऑन द नंबर लाइन टुवर्ड्स 2 यू कैन अप्रोच इधर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इसका मतलब 0, 1, 1.5, 1.9, 1.999। बच्चों आप 2 के नजदीक जा सकते हो बट यू कैन नॉट टच 2। That's what is meant by x tends to 2. So x tends to 2 from negative side or left hand side. X tends to 2 from positive side. बच्चों ज्यादा बड़े वाले वैल्यू 4, 3.5, 2.1, 2.01. Likewise, all values of x are more than 2. Now let's take certain values. X के values less than 2 के लिए 0, 1, 1.9, 1.99 ले लो। बच्चों मानते हो ये सब वैल्यूज ऑफ x आर टेंडिंग टुवर्ड्स 2 बट लेस देन 2। x टेंड्स टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। x के वैल्यूज 4, 3.5 बराबर है, देन 3, 2.1, 2.01। All of you agree? So these values of x are approaching 2 from larger side, so x tends to 2 from positive side। अब corresponding value of y फाइंड करेंगे बच्चों इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके। x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की तो 1, 1 सब्स्टिट्यूट की तो बच्चों 1.9, 3.8 एंड